Understanding your career journey of 35 years in Indian Foreign Services, what have been the most challenging assignment or project that you have worked on during your service career? And do you see recent tension between India and Japan due to a difference in stance on Russia-Ukraine war? What are your take on China? One is that we should be pro-China and we should grow along with them. Second is कि हमें अपने को ही डेवलप करना चाहिए. China is the biggest competition. I think role would have also evolved कि उस टाइम थोड़ा सा डिफेंसिव पे जाके we have to maybe go ahead and tell people कि हमारा इंस्टेंस ये क्यों है, जस्टिफाई करना. So what is our relationship currently with Canada? एक यूएस है जो पूरा कैपिटलिस्ट इन नेचर है एंड सेकेंड इज चाइना जो बहुत क्लोज इन नेचर है. तो अगर हमें इन दोनों को बीट करना है, कैन देयर बी अ मिडिल पाथ? जस्ट ब्लॉक भी रहता है कि आपको कभी लगता है यार बहुत सही आइडिया है लेकिन फिर आप आगे उस पर डेवलप नहीं कर पाते. जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा भाई आपको पता कैसे लगा कि मैंने नॉवल लिखी है, क्योंकि वो तो अभी छपी नहीं है. तो कहते नहीं, आपके पब्लिशर ने हमें मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी थी और हमें बहुत पसंद आई और हम उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं. सो हाउ मच अ राइटर इज इन्वॉल्व जब फिल्म का एडॉप्शन होता है? मेरे पास एक कॉल आया रात के करीब 2 बजे. कहते विकास विकास. मैंने कहा क्या हो गया भाई, रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हो, क्या हो गया? कहते हैं अभी अभी मैं एक फ़िल्म देख के आया हूँ और वो फिल्म उन्होंने तुम्हारी किताब से पूरी उठा ली है और तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा. मैंने कहा कौन सी फिल्म देखी है? कहते हैं स्लम डॉग मिलियनेयर उसका नाम. हाँ, बहुत इंटरेस्ट भी है इस समय. बॉलीवुड के कई लोग इसके पीछे लगे हुए हैं. हॉलीवुड में भी एक प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया हुआ है. Hi everyone, welcome to new episode of Growthcast. This podcast is aimed to help you develop both on the professional and personal front. Today we have with us Mr. Vikas Saroop, who is a career diplomat. He's a writer. He's the writer behind most loved picture that got Oscar from India, that is Slumdog Millionaire. And we'll be discussing about his career journey and some of the things that he would like to talk about his writing journey as well. Hi Vikas sir, welcome to Growthcast show and thank you so much for taking out time. I'd just like to start with understanding your career journey of 35 years in Indian Foreign Services, and can you share some experiences from that journey? Thank you, Shashank. It's a pleasure to be on your podcast. Yes, I had a 35-year career in the Foreign Service. It enabled me to serve on 4 different continents, twice in North America, twice in Asia, twice in Africa, and of course, once in Europe as well. And I think the great thing about the Foreign Service is that it allows you to experience the very DNA of societies and cultures, which is very different from the surface impressions that you would get when you visit a country as a tourist. Right. You know, when you live in a country for 3 years plus, then I think you understand the country much better. You gain a much more deeper understanding of what makes that country tick, what is the DNA of those people. So I would say that, my experiences during those 35 years enabled me to get a ringside view of history. It was during my tenure as a diplomat that the Cold War ended, the Berlin Wall came down, China went from agrarian society, a backward agrarian society, to an industrial powerhouse. And of course, I saw the relentless march of globalization. When even a small supermarket in Addis Ababa, where I was posted, had everything from Huggies diapers to Colombian coffee. Then, being in the Foreign Service, I was able to sort of get in touch with technology. My first program was a WordStar computer, which I'm sure many of your younger listeners have probably never even seen. I owned a Commodore 64 computer. And then from there, I saw my first fax machine, my first photocopying machine, and then, of course, my first cell phone, my first Twitter account. So I think being in the Foreign Service enabled me, first of all, to experience, as I said, the countries and cultures and immerse myself in those. And secondly, to see how history was changing, how diplomacy was changing. And finally, I was able to see the change in the image of India itself. Right. Because India was, at that time, when I joined the Foreign Service, was seen as a sleeping elephant, which was routinely lectured to by the West. And from there, it went to the fastest growing major economy in the world. Right. And of course, I saw the blossoming of Indian soft power, with interest in India now ranging from yoga to Ayurveda, Bangalore to Bollywood. Everything about India is now attracting the attention of the world. And I was able to see all that at very close quarters. How difficult is it for your family, sir, once you are IFS officer? वो कितना टोल फैमिलीज लाइफ पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा टोल एक्चुअली फैमिली पे ही पड़ता है. बिकॉज आप फॉरेन सर्विस में आप अपने देश से हज़ारों किलोमीटर दूर सर्व करते हैं. कई बार हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स में भी सर्व करते हैं. वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग प्रो इंडिया ही हों. और मेरे ख्याल से
फैमिली और बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. अब टेक द एग्जांपल ऑफ माय यंगर सन वरुण. ही वाज बोर्न इन वाशिंगटन डीसी. हिज फर्स्ट स्कूल वाज द ग्रीक स्कूल इन एडिस अबाबा. His second school was the British school in London. His third school was a CBSE school in Delhi. His fourth school was the American school in Johannesburg. His fifth school was the Canadian Academy of Kobe. तो आप ये देखिए यहाँ पे when you go from Delhi to Kerala कितना बदलाव आ जाता है और कितनी मुश्किल आ जाती है. यहाँ आप एक सिर्फ प्रदेश से नहीं, आप एक पूरे कंट्री से और एक कम्प्लीटली डिफरेंट करिकुलम में आप प्रवेश कर रहे हैं. और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है, चलो करिकुलम तो आप फिर भी समझ लें, हर 3 साल में आपको नए सेट ऑफ दोस्त बनाने पड़ते हैं. कल्चर डिफरेंस आ जाता है. तो ये मेरे ख्याल से समस्याएं हैं. बट देन कंपनसेशन भी है, क्योंकि फॉरेन सर्विस में आपको कई इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. जैसे कि मैं जब साउथ अफ्रीका में था तो हम लोग ने भारत जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता, जो पहला वर्ल्ड कप था T20 का, उसको इन पर्सन देखने का मौका मिला जोहानिसबर्ग में. इसी तरह सौरव गांगुली ने जब नेटफिस ट्रॉफी उठाई लंदन में, तो उस समय मैं था. फिर मैं ऐसे पर्सनालिटी जैसे कि नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है. फिर मैं जब एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्समैन था तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 40 देशों की यात्रा करने का मौका मिला. तो मेरे ख्याल से गुड बैड अगली सभी फॉरेन सर्विस में आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है. सर, व्हाट हैव बीन द मोस्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दैट यू हैव वर्कड ऑन ड्यूरिंग योर सर्विस करियर? देखिए, कई लोग ये समझते हैं ना कि ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, ये बड़े इलीट क्लब को बिलोंग करते हैं और ये सिर्फ कॉकटेल सर्किट पे घूमते रहते हैं और क्वींस और किंग्स के हैंड्स चूमते रहते हैं. ये गलत है, ऐसा नहीं है. यस, हम लोग को डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस वगैरह भी अटेंड करना पड़ता है, लेकिन काफ़ी मेहनत का काम है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, आपको इकोनॉमिक रिपोर्टिंग करनी है, और कई बार आपको क्राइसिस सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है. जैसे कि मेरी जो पहली पोस्टिंग थी टर्की में, उस समय प्रथम गल्फ़ वॉर हो रहा था और इंडियंस जो हैं वो अपना जान बचा के भाग रहे थे. तो मुझे भेजा गया टर्की, सीरिया और इराक के ट्राई जंक्शन पर, और वहाँ जो इंडियंस एस्केप करके आ रहे थे उनके लिए मुझे बसेस का इंतज़ाम करना था और उनको अंकारा लाना था, सेफ्टी की तरफ लाना था. इसी तरह जब मैं इथियोपिया में पोस्टेड था, एडिस अबाबा में, तब इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में युद्ध शुरू हो गया. देन आई वॉज टोल्ड टू गो टू जिबूती एंड अरेंज अ फ्लाइट. Can you imagine arranging a flight on Djibouti? There's no Air India available. I had to arrange a flight from a local airline called Dalo Airlines, which had Tupolovs and Antonovs running with Russian pilots. और उनको अस्मारा भेजना था, जहाँ पे इंडियन प्रोफेसर्स थे जो इरिट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, उनको बचा के लाने के लिए. तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार जो है बहुत क्राइसिस सिचुएशंस का भी आपको सामना करना पड़ता है. और ये मत भूलिए कि कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स ने अपनी जान तक गंवाई है. अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ, लंदन में ऐसा हुआ और बर्मिंघम में ऐसा हुआ. तो डिप्लोमेसी में जो है कई एडवांटेजेस भी हैं और कई चुनौतियां भी हैं. सर, तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ, देयर इज़ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी इन दिस करियर ऑप्शन, क्योंकि आपके पास कोई डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रहता. यू नीड टू वर्क ऑन इट ओन. हाँ, देखिए जिस तरह की हमारी जो प्रणाली है इस समय, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई डिप्लोमा या डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. जैसे नॉर्मल कोई भी आप एक सब्जेक्ट अब आपको चूज़ करना है सिविल सर्विसेज में, और उसके बाद आप मेरिट के हिसाब से आपको या तो फॉरेन सर्विस मिलेगी या आपको कोई और सर्विस मिलेगी. तो हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है सर्विस ज्वाइन करने के बाद, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो पहले एक फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स. उसमें आप जाते हैं पहले, और उसमें करीब 2 साल की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, और जो पहली पोस्टिंग होती है वो आपकी लैंग्वेज पोस्टिंग होती है. दैट मीन्स हर फॉरेन सर्विस ऑफिसर को एक कंपलसरी फॉरेन लैंग्वेज लर्न करनी होती है. जैसे मेरी लैंग्वेज थी टर्किश, तो इसलिए मेरी पहली पोस्टिंग थी अंकारा, जहाँ मैंने टर्किश सीखी. इसी तरह अगर आपकी लैंग्वेज है जापानीज़ तो आपको जापान भेजा जाएगा. अगर आपकी लैंग्वेज है फ्रेंच तो आपको पेरिस या ब्रसल्स भेजा जाएगा. तो वो फिर आपकी लैंग्वेज होती है, और फिर आप ऑन द जॉब लर्न करते हैं. और इसमें एज अ सेट कोई मैनुअल नहीं है आपके पास, आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है. यस, आपको ब्रॉडली बता दिया जाता है कि मेनली आपको इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. राइट. और इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको बढ़ावा देना है. और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट रहता है इसका. अब तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया है. इनफैक्ट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है डिप्लोमेसी का, क्योंकि
Main purpose of diplomacy is what? The main purpose of foreign policy is to create a good external environment to promote your domestic development. Right. तो उसके लिए अब बाहर से foreign direct investment को solicit करना, trade and investment को बढ़ावा देना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये भी हम लोग करते हैं. Got it, sir. Given your experience in Japan, do you see recent tension between India and Japan due to a difference in stance on Russia-Ukraine war? No, I think, look, when this so-called disagreement arose, Japan was at that time the president of the G7. Okay. So I think Japan was articulating the G7 position on Ukraine, which is a very clear position. They believe that Russia, by illegally invading Ukraine, has created a security crisis for Europe, and they need to resolve it. Our relationship with Russia is very different. It is based on a bedrock of friendship and cooperation dating back to several decades. Plus, don't also forget, Japan has a historical relationship with Russia stemming from, the dispute over the Kuril Islands. Right. And Japan, in fact, technically, Japan and Russia are still at war. That war has not yet ended. So I think that was the disagreement about. I don't think that has had any impact on the strategic partnership between India and Japan. Of all the strategic partnerships we have, I think the one with Japan is one of the most special ones. Japan is our #1 partner for infrastructure development. ये जो दिल्ली मेट्रो आप देख रहे हैं, वो भी जापान की सहायता से ही बनी है. जायका ने उसमें कंट्रीब्यूशन योगदान दिया था. और भी कई मेट्रोज जो अभी भारत में वाराणसी में भी आई थिंक दे आर कंट्रीब्यूटिंग द काइटो प्रोजेक्ट बनारस और जो बिल्कुल स्मार्ट सिटीज़ में जापान का योगदान है. क्योटो में जो क्योटो और वाराणसी का जो लिंक हुआ था, उसमें भी जापान की भागीदारी है. सो जापान इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज any major disagreement even on the Ukraine issue, because by and large, I think the West has understood our position on Russia. Got it. And sir, what are your take on China? Because I see people talking two sides. One is that we should be pro-China and we should grow along with them. Second is कि हमें अपने को ही develop करना चाहिए. China is the biggest competition. See, there are two aspects to this. One is China is an immediate neighbor. We share a long land boundary. Right. With China, more than 3,000 kilometers land boundary with China. So we have to live together with China, there is no doubt about it. At the same time, China has to respect our concerns. For 30 years, there was peace and tranquility on the border, and then China tried to unilaterally change that. And that is, as you know, what led to the unfortunate clash in Galwan in June 2020. And since then, you have, 100,000 troops facing each other on that border, right, which is not a healthy situation at all. But I don't think that situation will change unless and until China recognizes that it made a mistake and that it needs to resolve that particular standoff. So as Foreign Minister Jaishankar has said, the relationship with China will move forward only on the basis of the three mutuals. What are these three mutuals? Mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interests. If China follows that, then I think the relationship can improve, because there are many areas where China and India can work together. Right. I mean, climate change is one such area. Then water management, because there are many common rivers between India and China, and it is important that we do a proper, mapping of the resources, etc. Then global health. After all, the COVID virus, where it emerged from. International terrorism, international trade. So there are many areas where India and China can work together, but for that, I think those three mutuals have to be respected. I think talking about China, we can't miss point on United States. You have been in United States, you have worked closely with that particular country. Can you walk us through some of the initiatives that you took while you were posted there? Look, I did not personally take an initiative, and when I was posted there, I was a very junior officer. I was special assistant to the ambassador. But then when I was working closely with the then Foreign Minister of India, Mr. Natwar Singh, that is when I think the most transformative moment in India-US relations happened, and that was the India-US Civil Nuclear Agreement, okay, which was signed in 2005, became operational in 2008. And I think that was very, very important, Shashank, for the simple reason that with that agreement, we were able to end India's nuclear isolation. As you know, we did a peaceful nuclear explosion in 1974, and then we went full nuclear in 1998, where we conducted a series of nuclear tests. And the world did not acknowledge us as a nuclear power. They said, we have not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, we will not acknowledge you as a nuclear weapons power. But because of that agreement, I think the US acknowledged that yes, India should be a part of the global nuclear non-proliferation regime, and they relaxed their export control rules. They allowed India to be a country which has civilian technology and which has military technology as well.
And then they allowed us to get a waiver from the nuclear suppliers group as well. So I think that was one of the most transformative moments in India-US relations. It led to the deepening of the strategic partnership, and now, of course, that partnership has grown leaps and bounds. We are now members of the Quad, as you know. So I think that was the starting point. Got it. And throughout your career, you have seen foreign policy evolve over the years. So how was it like back then when you started compared to how it is now? I think, when I joined the Foreign Service in 1986, India was a closed economy. And the world did not really care much about India. As I mentioned in my earlier statement, that India was seen as a sleeping So elephant. उस टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहती थी आपके सामने? उस समय लोग आते थे, हमको लेक्चर दिया करते थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर और कश्मीर के ऊपर, हमको रूटीन वे में लेक्चर दिया करते थे कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप वो ठीक नहीं कर रहे हो. एंड देन 1991 happened, our economic liberalization happened, and उसके बाद से once the animal spirits of the Indian creative entrepreneurs was released, then India started galloping forward, and then we started having growth rates of 8%, 10%, and that is when the world started to take notice of India. And now India, as you know, is the 5th largest economy in the world. Right. And that is why I think the whole world wants to quote India, the whole world wants to come to India, they want important partnership with India. And सबसे बड़ी बात ये है, Shashank, at that time when I joined the Foreign Service, India was seen as the problem. Now India is seen as the solution. Right. If you look at our role in climate change negotiations, if you look at our role in WTO negotiations, if you look at our role in cybersecurity, maritime security, international terrorism, everywhere India's voice is heard with respect, and India is seen as part of the solution, not as part of the problem. So that is, I think, the biggest change that has come in the perception of India. And I think role would have also evolved कि उस टाइम थोड़ा सा डिफेंसिव पे जाके we have to maybe go ahead and tell people कि हमारा इंस्टेंस ये क्यों है, justify करना rather up talking about investments and Because economic. देखिए सीधी सी बात ये, the world only understands one language, and that is the language of strength. Right. उस समय आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर थी, तो इस समय वर्ल्ड आपको ध्यान नहीं देती थी, आपको तवज्जो नहीं देती थी. नाउ वंस यू आर द 5th largest economy in the world and you represent 1/6 of humanity, Right. the decisions that you make on environment, the decisions that you make on sustainable agriculture, the decisions that you make on health, all these are decisions that will impact the rest of the world. Right. इनफैक्ट शुरुआत में ही अगर हमने डेमोक्रेसी नहीं अडॉप्ट की होती 1947 में, द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट इन द वर्ल्ड. तो इंडिया, आई थिंक, इज एन इम्पॉर्टेंट पोल ऑफ द मल्टीपोलर ऑर्डर, and I think the world acknowledges that and treats it with respect, and I think we also need to be engaged with the world. Got it. Sir, एक क्वेश्चन जो भी ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन में दिमाग में आ रहा है कि देयर आर 2 countries which are growing at a very fast pace. एक यूएस है जो पूरा कैपिटलिस्ट इन नेचर है, एंड सेकंड इज चाइना जो बहुत क्लोज्ड इन नेचर है. तो अगर हमें इन दोनों को बीट करना है, कैन देयर बी अ मिडिल पाथ दैट वी कैन फॉलो? Look, I think ours is actually a mixed kind of you cannot say it is pure capitalism, because Right. there's a lot of welfareism involved. Right. 813 मिलियन लोगों को हम फ्री फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, इतनी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, एट्सेट्रा, इतने लोगों को हम गैस सिलेंडर्स दे रहे हैं. सो देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ वेलफेयरिज्म इज वेल. सो आई थिंक मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ. Pure capitalism, I don't think, is going to help, and of course communism is a failed strategy. Right. So we have to evolve a middle path where you allow the creative energies to be unshackled, you allow startups to boom, and at the same time you ensure that the most vulnerable among your population are also taken care of. Right. I'll shift gears, sir. Now we want to talk about your journey as a writer. So when did your passion for writing started? So actually, many writers, when they are asked कि आप when did you decide to become a writer, कोई कहता है मैं 6 साल का था, कोई कहता है मैं 3 साल का था, मेरी माँ ने पूछा और मैंने कहा कि मैं तो लेखक बनना चाहता हूँ. मेरे साथ ऐसा नहीं था. मैं तो एक डिप्लोमेट था. 1986 में मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन की, एंड देन आई रिमेन्ड अ डिप्लोमेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी अल्टरनेटिव करियर. लेकिन ओनली व्हेन आई वाज पोस्टेड इन लंदन में मैं पोस्टेड था 2000 और 2003 के बीच में. That is, I think, then the first germ of being a writer entered me, and the reason for that was very clear. London is the hub of the world of English language publishing. Right. All the publishers of the world are there, all the agents are there, and we used to have the Nehru Center, which is the cultural wing of the Indian High Commission. And every week at the Nehru Center, a new writer would be launched, a new book would be launched, and that is when I thought to myself, I said, do I have a book inside me? Can I also write something? And the second inspiration was some of my contemporaries in the Foreign Service. They were writing fiction. So when I looked at them, I said, they were diplomats, but they are now writing fiction.
I am a diplomat, can I also write fiction? And that's really when this idea came into my head, that why not write a story based on a quiz show? Because उस समय, as you know, कौन बनेगा करोड़पति had become a sensation in हाँ, India. it has become a वो rage. स्टार प्लस पे जब अमिताभ बच्चन आते थे at 9 o'clock 9 बजे आप लोगों के घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि लोग कहते थे हमें तो भाई शो देखना है। right. मैंने सुना है शादियां रोक दी जाती थी 9 बजे, हाँ, कि भाई पहले कौन it बनेगा developed a करोड़पति, cult following. हाँ कौन बनेगा करोड़पति पहले देख लेंगे, फिर वर वधू जो हैं जयमाल वगैरह उसके बाद होगी। तो उसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ और मैंने कहा कि एक ऐसी कहानी लिखते हैं, जो एक ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया है, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड इज़ लाइफ इटसेल्फ। राइट। सो ये आइडियाज सर आते कहाँ से? बिकॉज आई ऑल्सो स्पीक विद लॉट ऑफ राइटर्स, तो राइटर्स ब्लॉक भी रहता है कि आपको कभी लगता है यार बहुत सही आइडिया है, लेकिन फिर आप आगे उस पर डेवलप नहीं कर पाते। सो डज योर एक्सपीरियंस एज IFS ऑल्सो प्लेड अ रोल इन दिस? देखिए IFS में मेन चीज़ हम लोग को क्या सिखाई जाती है, सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट जो हम लोग को सिखाई जाती है वो है हाउ टू यूज़ वर्ड्स केयरफुली। हर वर्ड का एक वज़न होता है, क्योंकि अगर फॉरेन डिप्लोमेसी में अगर आपने एक वर्ड गलत यूज़ कर दिया ना, तो आपकी रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ चौपट हो सकती है। राइट। तो क्योंकि हम लोग को वी आर ट्रेन टू यूज़ वर्ड्स वेरी केयरफुली, इसलिए जब आप वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं फिक्शन के लिए तो वो काम आ जाती है मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग। सो आई वुड से दैट। बट देन क्या होता है, देखिए नॉवल और शॉर्ट स्टोरी में क्या सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? अ शॉर्ट स्टोरी हैज़ अ पॉइंट, अ नॉवल हैज़ अ प्लॉट। राइट। और प्लॉट का मतलब है कि आपके कैरेक्टर का एक एवोल्यूशन होना है, A to B to C to D जाना है। और कई लोग जो हैं वो उसमें ही खो जाते हैं, फिर वो कि A से B तक तो ले जाते हैं, फिर C D E F भूल जाते हैं वो। तो इसलिए परसेवियरेंस बहुत ज़रूरी है, और आपको पूरा थ्रेड अपने दिमाग में रखना है कि जो कैरेक्टर है वो इवॉल्व कैसे करेगा। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। और ये मैं किसी क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप वगैरह में नहीं गया, ना ही इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। ये मैंने सीखा जो मैंने नॉवेल्स पढ़ी थी उनसे ही सीखा मैंने। गॉट इट। और सर आपकी पहली जो नॉवल Q&A, इट वाज अडॉप्टेड इनटू अ फिल्म, इट वॉन ऑस्कर आल्सो। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि नॉवल से ट्रांसलेट होकर फिल्म में जो बनी है? तो देखिए ये बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंस हुआ मेरा, क्योंकि नॉवल मैंने लिखी थी 2003 में, और 2003 में पब्लिशर के पास वो चली गई। पब्लिशर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी नॉवल है और इसको हम पब्लिसिटी के साथ छापेंगे, और हमारी बड़ी नॉवल सब ऑलरेडी लाइन अप है, तो ये 2 साल के बाद हम छापेंगे 2005 में। मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट टाइम नॉवलिस्ट हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और फिल्म 4 का ऑफ़र मेरे पास आया 2004 में, 1 साल पहले। दैट मीन नॉवल छपने के 1 साल पहले। तो जब मेरे पास कॉल आया तो मैंने कहा भाई आपको पता कैसे लगा कि मैंने नॉवल लिखी है, क्योंकि वो तो अभी छपी नहीं है। तो कहते नहीं, आपके पब्लिशर ने हमें मैन्यूस्क्रिप्ट भेज दी थी और हमें बहुत पसंद आई और हम उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो 2004 में उन्होंने राइट्स ले ली, और फिर 2005 में नॉवल छपी, और 2008 के एंड में ये फिल्म आ गई स्लमडॉग मिलियनेयर। और जब ये फिल्म आई थी तो लोगों ने इसको कोई चांस नहीं दी थी, क्योंकि ये बहुत छोटे बजट पे, मेरे ख्याल से इसका बजट था मेरे ख्याल से $10-12 मिलियन बस। बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, और प्लस उस समय अननोन लोगों के साथ थी। किसी ने फ्रीडा पिंटो का नाम नहीं सुना था, देव पटेल भी लार्जली अननोन थे, जो AR रहमान ने जो म्यूज़िक दी उनको वेस्ट में उस समय कोई नहीं जानता था। तो उसलिए लोगों ने ये सोचा नहीं था कि ये फिल्म जो है कुछ धमाका करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से दिस वॉज द राइट फिल्म फॉर द राइट टाइम, बिकॉज ये फिल्म कब आई? ये 2008 के एंड में आई, और 2008 का डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हुई थी उस समय। लोग, पीपल वर लूजिंग होप, पीपल वर लूजिंग जॉब्स, और वो चाहते थे कोई ऐसी चीज़ आए जो उनको इंस्पायर कर सके। तो ये स्लमडॉग मिलियनेयर आ गई और उसने लोगों को इंस्पायर कर दिया कि देखो जी, मुश्किल होने के बावजूद भी आप ट्रायम्फ कर सकते हो। यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन बी द विनर, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दिस फिल्म वर्कड। ऑफ कोर्स इट वाज अ गुड फिल्म ऑल्सो। सो हाउ मच अ राइटर इज इन्वॉल्व? जब फिल्म का एडॉप्शन होता है तो आपके कितने इनपुट्स रहते हैं? तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें आई हैड क्रिएटिव कंट्रोल। क्रिएटिव कंट्रोल का मतलब है कि उनको मुझे स्क्रीन प्ले दिखाना है, और मैं उस पर जब अप्रूव करूंगा तभी आगे बात बढ़ सकती है। तो मैंने उनका स्क्रीन प्ले देखा, कुछ उसमें कई त्रुटियां थी शुरुआत में जो उन्होंने किया था, तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद उनको एक्चुअली राइटर से कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज फिल्म वालों की जो बाइबल होती है वो स्क्रीन प्ले होती है। तो जो स्क्रीन प्ले राइटर जो बाइबल लिख देता है, बस वो उनके लिए मुख्य आधार बन जाता है। जो ओरिजिनल बुक थी उससे किसी को लेना देना नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि शूटिंग शुरू हो गई। एक दिन मैं दैनिक जागरण में पढ़ रहा था कि ये कुछ लोग जो हैं ताजमहल में अरेस्ट कर लिए गए हैं क्योंकि वो शूटिंग कर रहे थे बिना परमिशन के। तब मुझे पता लगा कि मेरी फिल्म बननी शुरू हो गई है और शूटिंग शुरू हो गई है। अच्छा, और सर इसमें ये भी जब इसका जो आपका वर्जन टीवी पे आया या फिल्म पे आया, उसके बाद के कैसे रिव्यूज़ थे आपके इनर सर्किल से, फ्रेंड से, फैमिली से? क्योंकि पहले बुक आई थिंक थोड़े कम लोगों ने पढ़ी होगी, बाद में ज़्यादा फेमस। नहीं, फिल्म बुक भी एक्चुअली काफ़ी सक्सेसफुल थी, क्योंकि फिल्म आने से पहले ही बुक 37 ट्रांसलेशन में जा चुकी। ओह नाइस। 37 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका था।
तो इसलिए मतलब है कि ऑलरेडी किताब ग्लोबल बेस्ट सेलर एक तरह से हो चुकी थी। लेकिन यस, जब फिल्म आई तो वो डिफरेंट लेवल पे चली गई, बिकॉज ये तो फैक्ट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ज़्यादा लोग फिल्म देखते हैं और कम लोग किताबें पढ़ते हैं। अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है इंडियंस तो का। सबसे इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि मेरे पास एक कॉल आया रात के करीब 2 बजे। एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ क्लास में पढ़ता था, वो अब सैन फ्रांसिस्को में रहता था, उसका फ़ोन आया, कहते विकास विकास। मैंने कहा क्या हो गया भाई, रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हो, क्या हो गया? कह रहे नहीं यार, मुझे कुछ तुम्हें बताना है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अभी अभी मैं एक फ़िल्म देख के आया हूँ और वो फिल्म उन्होंने तुम्हारी किताब से पूरी उठा ली है और तुम्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखी है? कहते हैं जो स्लम डॉग मिलियनेयर उसका नाम है। तब मैंने कहा लगता है तुमने अंत तक नहीं देखा, उसमें मेरा नाम था। कहता अच्छा तुम्हारी किताब पे ही बेस्ड है। मुझे तो डर लगा कि कहीं उन्होंने तुम्हारी नॉवल से बिना तुम्हारी परमिशन के तो नहीं उठा ली है। तो यही है कि फिल्म जो है बहुत सक्सेसफुल रही, 8 ऑस्कर उसने जीते, बेस्ट फिल्म हो गई उस साल की। और जय हो जो है वो गाना कितना लोकप्रिय हो गया, अभी तक फेमस है, अभी अभी वर्ल्ड कप तक- जीत के आई है अभी तक इंडिया। जहाँ देखिए जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे वो गाना चलना शुरू हो जाता है। तो फिल्म जो थी वो एक ब्रांड बन गई एक तरह से। राइट। तो ये मेरे ख्याल से फ़र्क है कि Q&A एक पुस्तक थी और स्लम डॉग मिलियनेयर एक ब्रांड हो गई है। तो जब ब्रांड और पुस्तक मिल जाते हैं तो फिर एक अलग ही उसका अलग ही महत्व हो जाता है। एंड सर प्लीज टॉक अस अबाउट योर लेटेस्ट बुक जिस पे आप अभी वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। तो ये देखिए अभी अभी ताज़ा मेरे हाथ में आई है, ये एडवांस कॉपी, अभी ये रिलीज़ भी नहीं हुई है। ये रिलीज़ हो रही है 15 जुलाई को, अभी अमेज़ॉन पे प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसका टाइटल है द गर्ल विद द 7 लाइव्स। तो ये एक्चुअली मैं 11 साल के बाद वापस आ रहा हूँ पब्लिशिंग वर्ल्ड में, क्योंकि आखिरी नावल थी मेरी द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस जो 2013 में आई थी। अच्छा। और अब हम 2024 में हैं और अभी मेरी नई नावल आ रही है। उसका रीज़न यही है कि मेरे लिए हमेशा से मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और जो मैं लेखन करता था, पैशन था, वो मेरा साइड पैशन था। और करियर में मैं इतना व्यस्त हो गया था क्योंकि मैं जब जापान से लौटा, जापान में मैंने आखिरी किताब लिखी थी एक्सीडेंटल अप्रेंटिस, उसके बाद मैं ऑफिशियल स्पोक्समैन बन गया। और ऑफिशियल स्पोक्समैन का तो आपको पता ही है, हर थर्सडे को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, प्लस फिर प्रधानमंत्री के साथ ट्रैवल करना, विदेश मंत्री के साथ ट्रैवल करना, खुद का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद मैं कनाडा चला गया हाई कमिश्नर बन के। तो मैंने सोचा था कि कनाडा में समय मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पता लगा कि चाहे सोनू की बर्थडे हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे तीज हो, सब सैटरडे और संडे को ही होता है और सबको उच्चायुक्त की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी मैं नहीं लिख पाया। तो जब मैंने रिटायर हुआ हूँ मैं फॉरेन सर्विस से जून 2021 में, उसके बाद मैंने ये लिखनी शुरू की और मुझे बहुत खुशी है कि ये समाप्त हो गई है और बहुत जल्दी ही मेरे राइटर्स के हाथ में आने वाली है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग दैट। सर आप अभी कितना टाइम आपका जाता है वीकली, इफ़ यू टॉक अबाउट राइटिंग, तो कितना टाइम लेता है? नहीं देखिए, जब अब तो मैं फुल टाइम राइटर हूँ क्योंकि अब मैं करियर मेरा समाप्त हो चुका है, अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो जब आपको लिखना होता है तब आपको ये मन में गांठ बांधनी होती है कि आज मुझे लिखना है, एक स्ट्रेच में। और मेरे लिए जो सबसे अच्छा समय होता है लिखने का वो होता है अर्ली मॉर्निंग, 5:30 से करीब 9 बजे तक, क्योंकि उस समय दुनिया शांत रहती है, मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं बज रहा होता है और मैं शांति से लिख सकता हूँ, शांति से कंसेप्चुलाइज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं ये मान के बैठता हूँ कि आज मुझे लिखना है और जो मैंने कंसीव किया हुआ है उसी थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं और आप फिर लिखना शुरू कर देते हैं। तो करीब 1.5 साल लगा मुझे इस नावल को ख़त्म करने में। इसका थॉट आपको आया कहाँ से, इस वाले नावल का आइडिया? इस नावल देखिए, जो मेरी आखिरी नावल थी इससे पहले जो थी एक्सीडेंटल अप्रेंटिस, वो मैंने एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव से लिखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो अनुभव। वैसे तो मेल राइटर के लिए फ़ीमेल कैरेक्टर्स कंसीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा वो, और मैंने वो कर दी। और किसी ने भी ये क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि वो आपने जो फ़ीमेल कैरेक्टर बनाया है वो गलत है या वो मेल नहीं खा रहा है एक एक्चुअल फ़ीमेल के साथ। तो उससे मुझे स्ट्रेंथ मिली और मुझे कॉन्फिडेंस मिली कि मैं एक और नावल भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको कहूँगा इन अ वे दिस इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर, इन द सेंस कि कोई गेम शो वगैरह नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर उसी तरह का है कि एक युवती है 25 साल की, उसको किडनैप कर लिया गया है, अब उसको एक बेसमेंट में कैद कर लिया गया है, उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और एक मास्क्ड गनमैन है, वो उसको थ्रेटन कर रहा है कि अब मुझे अपनी पूरी तुम जीवन कहानी बताओ और तुमने जितने जितने क्राइम्स किए हैं उन सब का मुझे बयान करो, वरना जो है मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। तो एक रात की कहानी है, एक रात में देवी है जो मेरी प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी पूरी कहानी बयान करती है और कैसे उसने 7 अवतार में एक तरह से गई, वो उसने
एक स्लम में पैदा हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो वो किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रही, नया नाम उसने ले लिया, एक नई जीवन उसने शुरू किया। तो उसकी जो 7 जीवनियाँ हैं उसी की कहानी है और उम्मीद करता हूँ पाठकों को पसंद आएगी। नहीं सर, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये भी एक पूरा फिल्म मटेरियल है विद लॉट ऑफ सस्पेंस हाँ, इन्वॉल्व्ड। बहुत इंटरेस्ट भी है इस समय। बॉलीवुड के कई लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, हॉलीवुड में भी एक प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया हुआ है, लेकिन अब 15 तारीख को आने दीजिए, फिर सब लोग जो हैं इसको देख सकते हैं। क्योंकि स्लमडॉग मिलियनेयर के साथ क्या हुआ, क्योंकि राइट्स 1 साल नॉवेल आने के पहले ही चली गई, तो जब बॉलीवुड उस पर फिल्म बनाना चाहता तो उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि राइट्स तो पहले ही जा चुकी थी। तो इस बार मैं चाहता हूँ सबको बराबर का मौका मिले। फेयर फील्ड सबके लिए। फेयर फील्ड, एग्जैक्टली। आई थिंक सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने कनाडा की बात की थी, यूर हाई कमिश्नर, सो व्हाट इज आवर रिलेशनशिप करेंटली विद कनाडा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स दैट कीप ऑन कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री। देखिए, कनाडा के साथ जो है हमारी रिलेशनशिप जो है हमेशा 2 मुद्दों के ऊपर डिरेल होती रही है। पहला मुद्दा था न्यूक्लियर। 1974 में जब हमने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, तो जो पहली टेक्नोलॉजी हमको न्यूक्लियर मिली वो कनाडा से मिली थी। अप्सरा करके हमारा एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर था जो कनाडा से टेक्नोलॉजी आई थी। तो कनाडा को लगा वो बिट्रेयल है कि हमने आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी सिविलियन पर्पज़ के लिए, आपने उसको वेपन में प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रतिबंध वगैरह लगा दिए उस समय। उसके बाद 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो फिर कनाडा का रिएक्शन जो था बहुत नेगेटिव था। लेकिन उसके बाद वो मामला सुलझ गया, यहाँ तक कि 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए थे, एट दैट टाइम इंडिया एंड कनाडा साइंड अ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट दैट कनाडा विल सेल यूरेनियम टू इंडिया। सो दैट इज कमिंग फुल सर्कल कि कहाँ एक ज़माने में आपने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और अब आप हमें यूरेनियम बेच रहे हो। तो न्यूक्लियर इशू तो रिजॉल्व हो गया। लेकिन जो दूसरा इशू है वो है खालिस्तान का इशू। अब कनाडा में आपको पता है बहुत बड़ी सिख पॉपुलेशन है। कई सिख जो हैं वो 1970-1980 के दशक में भारत से निकल के कनाडा चले गए थे। उनमें से 1 या 2% जो हैं वो खालिस्तान की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। और हमको ये लगता है कि कई बार जो सरकारी तंत्र है वो भी उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वालों का साथ देता है, उनका समर्थन करता है। तो उसको लेकर कई बार खटपट हो जाती है। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली इंडिया एंड कनाडा आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़। हम दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं, कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं। और प्लस कनाडा G7 का मेंबर है, हम G20 के मेंबर हैं, कनाडा भी G20 का मेंबर है। तो इवेंचुअली आई थिंक कॉमनैलिटीज़ ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पेंशन फंड इस समय जो हैं कनाडा के, उन्होंने इंडिया में निवेश बहुत अधिक कर दिया है। करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का कैनेडियन पेंशन फंड का निवेश है भारत। वीसी फर्म्स में भी जितनी है, वीसी ये इनको पेंशन फंड्स कहते हैं, जिनके पास एज यू नो एम्प्लॉयज़ का पेंशन आता है और उसको वो सेफ जगह लगाना चाहते हैं। तो इंडिया उनको सेफ डेस्टिनेशन लगता है जहाँ पे उन्होंने इतनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। गॉट इट सर। दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी इसको देख रहे होंगे। सो व्हाट आर योर टिप्स फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट इफ दे आर प्रिपेयरिंग कि सिविल सर्विसेज में करियर कैसे बनाएं? एक तो देखिए, सिविल सर्विस का करियर बहुत अच्छा करियर है, फॉरेन सर्विस का इन पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा करियर है, क्योंकि आपको रियली देश सेवा का मौका मिलता है और अच्छी खासी आपकी लाइफ भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर वर्ल्ड। मैंने भी कई लोगों को ये इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए मैंने प्रोत्साहन दिया है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए, ये अवेयरनेस जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एग्ज़ाम से आप 2 महीने पहले आपने पढ़ना शुरू कर दिया। राइट। ये अवेयरनेस ऐसी है कि आपको लाइफ लॉन्ग रखनी है और उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं क्या करता हूँ, सवेरे उठता हूँ तो सबसे पहले मैं 4-5 वेबसाइट्स पे जाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, CNN, BBC, रॉयटर्स, और समझ लेता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। और देन दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स मी अवेयर कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, और उसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं और डिटेल में जा सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस रखिए, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ पढ़ रहे हैं। और तो अगर ये रहेगा तो आई थिंक जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है और आपका जो इंटरव्यू है उसमें लिए आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। गॉट इट। एंड सर, पैशन के बारे में एक साइड पैशन होना ज़रूरी है, जैसे मेरा कंटेंट क्रिएशन, आपका राइटिंग, तो ये भी होना चाहिए एस्पिरेंट्स के साथ? बिल्कुल। देखिए, यूनिडायमेंशनल लाइफ जो है इज़ नॉट अ गुड लाइफ। हर लाइफ में कई तरह के पहलू होते हैं, और ये जो लोग कहते हैं ना कि एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और राइट साइड ऑफ द ब्रेन, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हमारा ब्रेन जो है इंटीग्रेटेड ब्रेन है, उसमें लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, एक लॉजिकल साइड भी है और एक क्रिएटिव साइड भी है। और अगर हम अपने क्रिएटिव साइड को डेवलप कर सकते हैं
भले ही ज़रूरी नहीं कि हर एक को नावल लिखनी है या हर एक को आर्टिस्ट बनना है. आप आर्ट का अप्रिसिएशन कर सकते हैं, बुक का अप्रिसिएशन कर सकते हैं, म्यूज़िक का अप्रिसिएशन कर सकते हैं, ट्रैवल का अप्रिसिएशन कर सकते हैं. कुछ भी है, ये इंटरेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपकी लाइफ ज़्यादा परिपक्व हो सकती है. इट कैन बी अ मोर कंप्लीट लाइफ, इट कैन बी अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, जैसे रेमंड का एडवर्टिजमेंट है, and then you can be a complete man. Man. Thank you so much, sir, for taking out time and wishing you all the best with your book. Thank And you I very will much, share the Shashank. Amazon link in the description and in the reels also. So if you guys are looking out to purchase, you can directly purchase it from there. And once again, the girl with the 7 lives. Thank you, sir.